डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम को श्री कृष्णा घाट हरिद्वार से करने जा रहा हूं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो योगा रहेगा। योगा जो हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है, योगा जिसका इम्पैक्ट है हमारे शरीर पर भी, हमारे माइंड पर भी और हमारे सोल पर भी। हम योगा पर आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा को आगे ले जाने के लिए मेरे साथ हमारे स्टूडियो में हमारी आज की गेस्ट रहेगी डॉक्टर राधिका नागरथ। डॉक्टर राधिका नागरथ एक जर्नलिस्ट है, एक रिसर्चर है और उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी है। शी इज़ एन इंटरनेशनल स्पीकर and has done extensive research on Swami Vivekananda. So first of all, I welcome Dr. Radhika ji to this mobile studio. Radhika ji, आपका बहुत बहुत स्वागत है and welcome to this studio. माँ गंगा, she is witnessing this interview. She is listening to our talks and obviously she will be blessing us during the course of this interview. So how do you feel? Thank you so much. Really, it is an opportune moment to be on the banks of Ganga and discussing the age-old asset which our sages have given, yoga, Indianness. All this is so holistic in approach, and I think you have chosen a very good topic which is very much relevant in today's times, because a person is so much commercialized these days and he's so much tired from running after the materialistic things that he runs after such spiritual things. And what India has in its store, the whole world looks for that. As Swami Vivekananda had said, that spirituality is the backbone of India, and the moment any country loses its backbone, it's shattered. So for the spirituality, so many people are attracted to India, and it's a blessing from the sages, blessings from Ganga. Before I start today's topic on yoga, my viewers will be happy to know that Radhika ji has written various books on Indianness, on Indian culture, on spirituality. So I would rather request Radhika ji to throw some light on her authorships, on her works which she has done during the last several years on Indianness and Indian culture and spirituality. Radhika ji, you have written so many books so far. So could you please tell us about those volumes, those books? Yeah, my first book was on Swami Vivekananda. It's a research-based book. It took me almost 5 to 6 years, and even you can say the whole of my lifetime till now, because spirituality does not come in one day. It's a sadhana which one does over the years. And Swami Vivekananda, the known philosopher, the unknown poet. Yeah. So what did you explore while writing this book? I have explored his poetic persona in this book, because most of the people, they call Vivekananda as a conversationalist, as orator, as a philosopher, yeah. Thinker. But I have explored his English poems, and these are just a couple of them, 26, which he wrote from America. Very interesting that Vivekananda was a poet. Yeah. So very interesting, and we'll be learning to our viewers also new thing. Yeah, I think it's a matter of interest for all those who consider Swami Vivekananda as their ideal, because it's he is a youth icon, I can say. Many people are attracted to his words of strength. So when did you wrote this book? This was completed in the year 2006, because it was my thesis, my PhD work, and I'm very much fortunate that Advaita Ashram, Kolkata, which publishes Ramakrishna Mission literature, they have accepted this book. So I'm just a common person, but
being selected by the monks of stature of Ramakrishna Mission. I'm really privileged. Any other book you have written, Radhika ji? Yeah, I also wrote something on peace. Actually, I attended a yoga conference in California, and from there I got this inspiration to compile all my articles which were published in different newspapers on yoga, art of living, peace. And I gave the title to that book, Pieces to Peace, Taking Little Steps. We all are looking for peace, and how do we start up taking little steps? I explored in my book. Okay, you have that book also? Yeah, right now I am having the Hindi version of that, Shanti which ki is about Talash to be mein Zindagi. released. Yeah. What does the cover design signify? Just an idea struck me that everyone is looking for happiness, for peace, be it a common man or a saint. And when one gets a chance to come in holy ambience, holy place, संतों के सानिध्य में आना या संत नगरी में आना, तो उसमें एक कॉमन आदमी भी संत में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो अल्टीमेटली अपने गोल पे पहुंच जाता है, जो गोल सभी का ये है, शांति प्राप्त करना, पीस प्राप्त करना. It's a very nice book on शांति की तलाश में जिंदगी. Another book which is compilation of writings of my mother. This is titled तेरे से भी हसीन है तेरी बगिया. तेरे से भी हसीन. अगर आप इस टाइटल को देखें तो जब इंसान को ज्ञान हो जाता है, जब उसको संसार का असली रूप समझ में आ जाता है, तो फिर वो प्रभु से कहता है कि प्रभु तू ही नहीं, तेरे से हसीन है तेरी बगिया. अदरवाइज तो ये संसार एक माया जाल और ट्रबल्स और ट्रिबुलेशंस का ही सागर नजर आता है. Your mother seems to be a spiritual lady here as per the design, cover design is concerned, and her name was Geeta. Yeah. Nagrat, Anandi. Anandi, she had given this subtitle to her name, Anandi. पहले वो अपने आप को घायल तखल्लुस से एड्रेस करती थी, क्योंकि जीवन में बहुत कष्ट सहना पड़ा और एक इंडियन लेडी को कुछ ज़्यादा ही सहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे पेट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें मैन डोमिनेशन है, इट्स बट नेचुरल. और उसके बाद में जैसे जैसे आध्यात्म में वो बढ़ती गई और हरिद्वार में रहने का उनको मौका मिला, लगभग हम लोग यहाँ पिछले 30 वर्षों से हैं, तो संतों के सानिध्य में जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, मेरी माँ को उसकी गॉड रियलाइजेशन, बहुत सी ऐसी अनुभूतियाँ भी हुई, तो फिर उन्होंने अपना टाइटल आनंदी लिख दिया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी तो आनंद में ले ही जाएगी. One more book. ये हिंदी वर्जन है ये स्वामी विवेकानंद बुक का, प्रसिद्ध दार्शनिक अनजान कवि. So this is the Hindi translation of the book she has written on Swami Vivekananda, and you may see. Are these books available in the market on the stands? जी सर. Suppose someone wants to purchase and read these books. एक्चुअली ये जो हिंदी वर्जन है ये भी रिलीज़ होना बाकी है. उसके बाद में आपको मिलेगा, बट हाँ इंग्लिश बुक्स तो अभी अवेलेबल हैं. और कुंभ पे भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उसमें एक कॉफ़ी टेबल बुक है, जो ऑलमोस्ट सब एम्बेसीज में रखी गई है. Okay, so you have written a book on कुंभ मेला. हरिद्वार कुंभ मेला. हरिद्वार कुंभ मेला जो 12 इयर्स में गंगा के किनारे होता है, और इसमें लगभग 8 crore people, or if I say in English, it's 80 million people gather at one spot, one single time, just to taste the nectar of immortality which Ma Ganga gives us. Dr. Radhika, it was very nice to see your books and your works and the time you have spent during the last several years on exploring spirituality, Indianness, and you have put up all those ideas into a book
shape. God works through me. Nothing is mine. That is a nice and great thought and good mindset. So let us start with our today's topic, that is yoga. So first of all, as an aspirant, I would like to know what is yoga. What is the definition of yoga? As Patanjali Rishi says, yoga is योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त में उठने वाली जितनी भी वृत्तियां हैं, जो माइंड वेव्स हैं, उनको शांत करना। जैसे गंगा के सरफेस पे अभी बहुत सी लहरें उठ रही हैं, लेकिन बीच गंगा के बिल्कुल शांति है। तो हम अपने माइंड को कैसे ट्रेन कर सकते हैं उस स्टेज पे आने के लिए, इसमें योगा हेल्प करता है। और योग अगर ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाए तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, ये 4 मार्ग बोले गए हैं हमारे स्क्रिप्चर्स में, इंडियन स्क्रिप्चर्स में। कर्म योग मतलब कर्म करते हुए डेली डे टू डे जो हम एक्टिविटीज़ हैं, उसी से उस परम सत्ता, उस सोर्स के साथ जुड़ जाना। Not calling yourself a doer, but you are a tool who is operated by some power, by some source in the universe. कोई तो सत्ता है जो इस सबको चला रहा है। और ऐसा करने से एक बहुत इंस्टेंट लाभ होता है कि अहम भाव एकदम चला गया। आपने जब अपने को कर्ता ना मान के किसी और को, अपने बिग बॉस को कर्ता मान लिया, कर्ता मीन्स डूअर, तो नेचुरली देयर इज नो चांस ऑफ फॉल्स ईगो, विच इज द मेन रीजन फॉर ड्राउनिंग ऑफ एनी पर्सन टू हेल, टू स्टूप डाउन। वो झुकना, वो जो गलत रास्ते पे चलना, वो इसी कारण होता है कि हमारी फॉल्स ईगो हमें उस रास्ते पे ले जाती है। भक्ति योग, मैं कुछ नहीं, तू है, तू ही है और मैं तेरा भक्त। मतलब इसमें ड्यूअलिटी है, ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन ये भी व्यक्ति को बहुत एक सहज मार्ग से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स हम सब इमोशनल हैं, तो हम दूसरे को हमेशा फॉर्म में चाहते हैं। तो मुझे एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को सोचना बहुत मुश्किल लगता है, पर जब मैंने उसको एक रूप दे दिया, बी इट जीसस क्राइस्ट, बी इट कृष्णा, बी इट राम, कोई भी फॉर्म दे दिया, तो उसके प्रति अपनी भावना व्यक्त करना हमको बहुत इजी लगता है। हमें लगता है वो हमें रेसिप्रोकेट कर रहा है। तो ये भक्ति योग भी एक जुड़ने का मार्ग है। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो लीन रहते थे भजनों में, कीर्तन में, बस। तो वो स्थिति को प्राप्त होना तो खैर आम आदमी के बस का नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत भी अगर नाम से मीरा का भी नाम ले सकते हैं। जी, ये सब भक्ति पीरियड के बहुत एक एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ रही हैं। और ज्ञान योग थ्रू द पाथ ऑफ नॉलेज, विजडम, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने स्क्रिप्चर्स में कहा, शास्त्रों ने डिफाइन किया कि डिस्क्रिमिनेशन आना चाहिए गुड और बैड में, क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसी का ज्ञान अगर है हमको तो रास्ता बहुत आसान है। और रास्ता मतलब हमें पहुंचना एक ही जगह है, मंजिल सबकी एक ही है कि हर कोई शांति चाह रहा है। कोई बहुत सारा इकट्ठा करके संसाधन जुटा के सोचता है मुझे शांति मिलेगी, कोई सोचता है मैं बहुत बड़े होटल में रहूँगा तो शांति मिलेगी, और जो ये सब देख चुका वो कहता नहीं शांति यहाँ नहीं है, शांति कहीं और ही है। तो जिसको ये ज्ञान हो गया, और वो ज्ञान कैसे मिलता है, नेचुरली जब आप किसी से सुनते हैं या पढ़ते हैं। तो एक और फॉर्म है योगा का आपने जी, राजयोग। हाँ, उसमें भी जो बहुत से हमारे एंसेस्टर्स ने और जो योग ऋषि हुए हैं, उन्होंने इस मार्ग को कहा है, प्रपोज किया है कि इसमें नॉलेज और भक्ति का दोनों का मिश्रण करके हम अल्टीमेटली उस सत्ता को जानते हैं और
उसमें माइंड का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आता है कि माइंड को कैसे ट्रेन करना है। ये मंकी माइंड हमेशा अट्रैक्टेड रहता है, जंपिंग करता रहता है। तो उसके लिए योग ही एक ऐसी टेक्निक है जो आपको एक होलिस्टिक अप्रोच देती है लाइफ में कुछ पाने की, जिस पाने के लिए हम कितने जन्म भी लेते आए हैं, ऐसा हमारा इंडियन फिलॉसफी का कहना है। जो राजयोग है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम ध्यान योगा और इट इज वन एंड ध्यान योगा इज पार्ट ऑफ इट। अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो राजयोग है, और उसमें योग के जैसे अष्टांग योग के 8 फोल्ड पाथ इसको हम बोलते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। तो ये सब स्टेप्स हैं जो एक व्यक्ति को उस परम सत्ता से मिलने का एक मार्ग बताते हैं, प्रशस्त करते हैं। डॉक्टर राधिका, अभी तो जो एक आम भावना है वो ये है कि योगा जो है वो एक फिजिकल एक्सरसाइज है। ओह, यू आर वेरी राइट। मैक्सिमम जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे जस्ट ट्राई टू perceive that yoga is a physical exercise. It is aerobics. So is it so, or it is beyond that? You have touched a very relevant point. मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि 2009 में मैं एक पीस कॉन्फ्रेंस में कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में गई, और वहाँ पे जो मेरा लेक्चर था उसमें यही था कि पीस थ्रू योगा। और मेरे जो चेयरपर्सन थे, ही वॉज फॉलोअर ऑफ बिक्रम योगा। वेस्ट में, यूएस में स्पेशली बहुत से टाइप्स बना दिए गए हैं इस योग के। एक योग को, हाँ, खुद ही उन्होंने अपने पेटेंट, तो हमने सुना नहीं है मतलब एक किसी व्यक्ति विक्रम नाम ने, अच्छा। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, पर एक मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वो एक एस्पेक्ट, हाँ, एक एस्पेक्ट को लेके उन्होंने उसका एक पूरी धारा चला दी। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि देखो, इंडिया से एक लेडी आई है एंड शी क्लेम्स दैट पीस कैन बी अटेन्ड थ्रू योगा। और हम लोगों को हमारे ऋषियों ने ये तो जैसे कहते हैं ना, जन्म के सबने वो घुट्टी ही दी है। हमें ये प्राप्त हुआ है कि अरे भाई, योग का पहला जो पर्पस है वो यही है कि आपकी मस्तिष्क में जितनी भी उथल पुथल है, जितनी भी टेंशन्स हैं, ट्रिबुलेशंस हैं, जितने भी थॉट्स हैं, वो एकदम शांत हो जाएंगे। तो उनको ये बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि वो फॉलोअर है उस योगा के, उसको हॉट योगा भी कहा जाता है, कि एक रूम में बहुत सारा हाई टेम्परेचर रेज करके आप एरोबिक्स कर रहे हैं, और वो जो हमारा सिर्फ, हाँ, वेट लूज करने के लिए, फिटनेस के लिए ये एक मेथड है। तो उनके लिए योगा जस्ट एक फिटनेस टूल बन गया है। तो और यही कारण है कि शायद वहाँ के लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, जैसा हमने अभी जो लास्ट वीक कंक्लूड हुआ है इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, उसमें भी देखा। तो मतलब ये दर्शकों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि योगा सिर्फ, इट इज़ नॉट ए फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज़ बियॉन्ड दैट। ये एक हमारा मेंटल बैलेंस है, एक मेंटल पीस है, जिससे हमें आत्मा और मन दोनों को शांति मिलती है। और योगा एक यूनियन है, फिजिकल और मेंटल और सोल का एक जुडिशियस बैलेंस है, एक ट्रेड ऑफ है, जिससे हमें शांति मिलती है। डॉक्टर राधिका, एक विडम्बना है जी, ह्यूमन बीइंग्स के साथ लाखों सालों से रही है, एक बहुत बड़ी विडम्बना है। पहले हम अपने आप को अशांत करते हैं, फिर शांति ढूंढते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर हमें शांति ही चाहिए तो हम बचपन से शांति के रास्ते पर ही क्यों नहीं चलते हैं? और इंडिया में तो ये फिलॉसफी तो हमें नई तो है ही नहीं। फिलॉसफी ये तो लाखों सालों से ऋषि मुनियों ने ये फिलॉसफी बताई है और स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म को बताया है। तो हर व्यक्ति अपने आप को फिर पहले अशांति में क्यों डालता है, पहले अपने आप को गमगीन क्यों करता है, दुखी क्यों करता है, और उसके बाद में बहुत सालों के बाद उसको 40-50 साल की एज में समझ आता है कि यार मैं तो बड़ा अशांत हूँ और मुझे अशांति है, मुझे इश्यूज़ है, मुझे प्रॉब्लम है,
मेरी हेल्थ खराब है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, उसके बाद वो शांति की खोज में चला जाता है। आपने बहुत सही कहा, ये ह्यूमन नेचर है। हम लोग पहले बाहर की चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, क्या आप क्या मैं, सभी लोग। ये बहुत साधारण सी बात है, क्योंकि जन्मों जन्मों से इसकी आदत पड़ चुकी है। हमने अपने आप को बॉडी मान लिया है। हम ये मानते ही नहीं हैं कि हमारा कुछ रिलेशन सोल से भी है। हम हमेशा अपने फिज़िकल बॉडी को नर्चर करते रहते हैं और वो जो स्पिरिचुअल पार्ट है उसको एकदम भूल जाते हैं। तो खैर, इसमें भी मेरा ये मानना है कि ये बुरा नहीं है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम ये सब छोड़ेंगे बिना जाने तो वो एक अभाव वैराग्य कहलाएगा। वहाँ बड़ी जगह पे जाना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, मुझे मिला ही नहीं, इसलिए मैं वैरागी हो गया, इसलिए मैं अध्यात्म की तरफ बढ़ गया। पर समझदारी इसमें है कि इस सब को भोगते हुए भी आपने एक बार टेस्ट कर लिया, कोई भी आपको अच्छी चीज़ खाने में दिखती है, नेचुरली शास्त्र बोलते हैं कि आप उसको खाइए। आपको गोलगप्पे पसंद है, आप ज़रूर खाइए, लेकिन साथ साथ उसमें दोष दृष्टि रखना। देयर इज़ अ वर्ड गिवन इन अष्टावक्र गीता। वो बोलते हैं दोष दृष्टि उस विषय की हमें पता होनी चाहिए। मन को समझाओ, हाँ बेटा तूने खा लिया, ये हमेशा तुझे आनंद नहीं देगा। फॉर द टेम्परेरीली, फॉर द टाइम बिंग तुमको उसमें रस मिला है, पर ये अल्टीमेट आनंद देने वाला नहीं है। तो आम व्यक्ति आज वो सब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहा है। उसको लगता है इससे मुझे शांति मिलेगी, पर जब वो सब हॉलो दिखते हैं और लगता है कि लाइफ इज स्लिपिंग थ्रू माई फिंगर्स एंड आई हैव नॉट अटेन्ड एनीथिंग, तब वो फिर दोबारा से अपने मूल स्वरूप की तरफ, हाँ, क्योंकि एक्चुअली वो खुद पीस का पुंज है। जो हमारी रियलिटी है वो पीस ही है। ये थोड़ी देर फंसने के लिए हम इधर उधर भागते हैं, फिर अल्टीमेटली तो वहाँ आएंगे ही। एक आपके मन में भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर हम बचपन से ही शांति की खोज में लगे रहेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। जैसे एक कॉन्फ्लिक्ट है, एक कंट्राडिक्शन है मटेरियल वर्ल्ड का और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का। जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं वो कहते हैं यार मटेरियलिज्म तो बहुत ज़रूरी है, हमें तो आज के डेट में खाना भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, गाड़ियाँ भी चाहिए, एसी भी चाहिए, एरोप्लेन्स भी चाहिए, क्योंकि ट्रेड चलता है, बिजनेस चलता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। और दूसरी साइड से जो फिलासफर्स है, स्पिरिचुअल फिलासफर्स हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं मन की शांति बहुत ज़रूरी है। तो राधिका जी यहाँ पर एक और कंट्राडिक्शन है। अगर हम सब लोग सिर्फ शांति की खोज में ही लगे रहेंगे, क्या उसका मतलब ये है कि हम मटेरियलिज्म को भूल जाए? अगर हम मटेरियलिज्म को भूलते हैं तो मैस्लो की जो थ्योरी है, आपने पढ़ा होगा, मैस्लो का मोटिवेशनल लॉ जो है, वो कहता है कि फिजिकल जो फिजियोलॉजिकल नीड्स तो हमारी बेसिक नीड्स है। एक व्यक्ति को खाना चाहिए, भूखे भजन न भजे गोपाला, न हुए गोपाला, मतलब भूखे पेट न भजन हुए गोपाला। मतलब अगर आदमी भूखा है तो वो भजन ही नहीं कर सकता है। जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं होगा तो वो कैसे सरवाइव करेगा? जिसके पास में छत नहीं होगा आज के डेट में तो वो कैसे सरवाइव करेगा? तो हमारे को रोटी, कपड़ा, मकान तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स तो है। फिर हमारी सेफ्टी नीड्स है, सोशल नीड्स है, एस्टीम नीड्स है, उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स है, सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स है। तो क्या फॉर्मूला बनाना चाहिए, क्या ट्रेड ऑफ होना चाहिए, कैसे हम बैलेंस मेंटेन करें कि हम पीस ऑफ माइंड भी बरकरार रखें और साथ साथ में हम जो जिस पर्पज़ के लिए हमने जन्म लिया है, काम करने का, कर्म करने का, वो कर्म भी करते रहें और पीस ऑफ माइंड भी होता रहे। तो योगा से हम किस तरीके से इसको बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं योगा के आधार पर? I think yoga gives us the basic bottom line, how to draw a line. कहाँ हमें end करना है अपनी डिज़ायर्स को, क्योंकि डिज़ायर्स एंडलेस हैं। आज मैंने एक जगह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, कल मेरा मन होगा मैं और किसी बड़ी जगह पे करूं। आज मेरे पास कार है तो कल मेरा मन उससे आगे के सुपीरियर मॉडल पे जाएगा। तो वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन कि क्या आप समझते वो गलत है कि सही है? नहीं,
अपना लाइफ स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाना सही है कि गलत है? लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना कोई गलत नहीं है, पर एक बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि जिस पर्पस के लिए मैंने अपना स्टैंडर्ड रेज किया था वो मेरे ऊपर ही हावी हो जाए, अशांति का कारण, वो अशांति का कारण बन जाए। तो योगा कैसे हमें हेल्प कर सकता है? उसमें योगा का सबसे इम्पोर्टेंट रोल आता है कि जब हमारे ये जो पंच कोशा है, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, ये पांचों को हमें नर्चर करते हुए लाइफ लीड करनी है। सिर्फ अन्नमय कोश मतलब फिजिकल बॉडी पे ही अगर हम सारे अपना जीवन का दारोमदार लगा देंगे, हमेशा सुंदर दिखना, सुंदर पहनना और इसी चीज़ में अगर लगे रहेंगे तो अल्टीमेटली जो पर्पस है लाइफ का वो लूज़ हो जाएगा। तो योगा हमें बहुत सहज से वे में इन सब मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक वेज को बैलेंस करते हुए अपने खुद को रियलाइज़ करने में हेल्प करता है। और सच पूछो तो शुरू में ये ज़रूरत होती है कि हम अपने लाइफ डेली जो रूटीन है उससे टाइम स्पेयर करें। वी स्पेयर से हाफ एन आवर फ्रॉम आवर डेली शेड्यूल। हाँ, मुझे आसन करना है, प्राणायाम करना है। प्राणायाम इसलिए ज़रूरी है कि कुछ जो इतना मेंटल स्ट्रेस है पूरे हमारे आसपास, जो ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और ये जो कॉमन मेंटल स्ट्रेस रिलेटेड डिजीज़ है, उनको वी हैव टू कीप देम एट बे एंड दैट कैन बी डन ओनली थ्रू योगा। तो शुरू में ऐसा होगा कि हमें थोड़ा सा टाइम स्पेयर करना पड़ा, ये मुझे आसन करना है, प्राणायाम करना है, और धीरे धीरे जब वो जीवन में इतना उतर आएगा तो एवरी मोमेंट विल बी द मोमेंट ऑफ यूनियन। आपको अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है अपने में भीतर उतरने की। आप काम कर रहे हैं तो भी आपका मन उसके साथ लगा हुआ है, तो आपको वो फिर एक बोझ सा नहीं महसूस होगा, आपकी लाइफ ही योगमय हो जाएगी। तो एज एन इंटेलेक्चुअल which type of yoga you recommend for this balance out of the 4 types of yogas which you just demonstrated? Which yoga you recommend for a perfect balance? For material world, not material world, for doing the activities, normal activities, and maintaining peace of mind at the same time. हाँ, एक्चुअली इट ऑल डिपेंड्स ऑन वंस ओन टेम्परामेंट, किसको क्या सूट करता है। क्योंकि बहुत जन्मों से हम इस रास्ते में लगे होते हैं, एवोल्यूशन के रास्ते में आगे बढ़ना, ये सभी की नियति है। तो किसी को भक्ति योग सूट करता है कि उसका मन कहता है कि मैं तो भगवान को सब सौंप के फ्री हो गया। भक्ति योग सरेंडर की बात करता है, तो बहुत अच्छा है। कोई भी मार्ग गलत नहीं है, हर मार्ग अपने आप में कंप्लीट है। जो हमें अपनी नेचर के अनुसार अच्छा लगे, आई थिंक उसको अडॉप्ट करना चाहिए। और जैसे राजयोग दोनों का मिश्रण है, बैलेंस करते हुए चलता है, तो मुझे ये लगता है कि हम ये सभी चीज़ों में दोष दृष्टि रखते हुए, ये जानते हुए कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, अगर ये थॉट हमेशा मेरे माइंड में रहेगा तो मैं उस चीज़ की गुलाम नहीं होंगी, मैं उस व्यक्ति की गुलाम नहीं बनूंगी। दुख का कारण यही तो होता है ना कि मेरे किसी अपने ने मुझे दुख दिया, मेरे को उससे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, या मैं उस चीज़ के लिए गई और वो मुझे नहीं मिली, तो आई एम शैटर्ड। तो अगर राजयोग के थ्रू हम इसमें बैलेंस बनाते हुए चलेंगे, ये अष्टांग योग भी करेंगे, कुछ आसन करने से फिज़िकल पोस्चर्स हमें हेल्प करते हैं, प्राणायाम हमें हमारी लाइफ ब्रेथ को इतना स्मूदन कर देता है कि 2 मिनट के अंदर माइंड रिलैक्स हो जाता है। जैसे कपालभाति प्राणायाम की अगर मैं बात करती हूँ, डेमोन्स्ट्रेट कर लेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए कैसे प्राणायाम करना चाहिए। तो ऐसे सिंपल से कुछ
आसन जो हाँ, आप वर्क ऑफिस में भी हो सके, कोई अगर बच्चा स्कूल में पढ़ता हो उसको भी वहाँ मदद मिल जाए। आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो उनको अपने स्कूल में भी मदद मिल जाए। कुछ ऐसे टिप्स बताइए हमारे व्यूअर्स को। हाँ, प्राणायाम जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं ये बहुत जल्दी हेल्प करती हैं व्यक्ति को कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में और रिलैक्स करने में। दोनों रोल्स हैं इसके, क्योंकि ये ब्रेथ ही है जो सोल को बॉडी से बाइंड कर रही है। तो जब हमने अपनी ब्रेथ को कंट्रोल कर लिया तो नेचुरली वो माइंड अपने आप शांत हो जाता है। और सबके पास इतना टाइम भी नहीं होता आज के बिजी वर्ल्ड में, स्पेशली आवर यंग फ्रेंड्स हु आर इनटू कॉलेज और स्कूल में जो एग्ज़ाम टाइम्स पे बहुत स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं। तो मेडिटेशन के लिए, योग निद्रा के लिए उनको लगता है ओहो अभी तो थॉटलेस हुआ ही नहीं, मैं कैसे योग निद्रा कर लूँ। तो प्राणायाम कपालभाति एक बहुत सिंपल सा है जो दोनों तरह से हेल्प करता है, माइंड को भी साइलेंट करने में और हमारे पेट को भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब जब हो जाती है तो इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स बहुत राइज हो जाती हैं। तो कपालभाति इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स। कपाल मतलब हमारा फोरहेड और भाति ग्लो। तो इसका ये साइड इफ़ेक्ट है कि आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव होती है। एक नेचुरल वे में आपके चेहरे पे भी एक जिसको रौनक कहते हैं, एक आभा मंडल का विकास होता है। तो इस आसन को आप जिस भी कंफर्टेबल पोस्चर में बैठना चाहें, सुखासन में, सिद्धासन में या ऑन अ कंफर्टेबल चेयर, प्रिंसिपल इज़ दैट आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो बैकबोन है, वो स्ट्रेट होना चाहिए ताकि सिग्नल्स ब्रेन पे ठीक से पहुंच सके।